Hello students and welcome back to DCAS initiative. My name is Swaraj and today we are going to discuss some important topics which were in news. First is Veer Savarkar, the greatest personality of Indian freedom struggle. Fifth schedule, US strips Hong Kong of special trading status. Basically Hong Kong ये न्यूज़ में बहुत है, तो अगर तुम्हारी एग्जाम्स आने वाले होंगे अपकमिंग में तो ये प्लेस के बारे में तुमको एग्जाम्स पूछ सकते हैं. इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स सेलिब्रेट हुआ था. न्यू डेवलपमेंट बैंक मॉन्टेनेग्रो ये कंट्री के बारे में भी न्यूज़ में था, तो दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर यू गाइज टू स्टडी विद रिस्पेक्ट टू योर एग्जाम. देन वर्ल्ड डुगोंग डे. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़. सो वीर सावरकर, Vinayak Damodar Savarkar is its full name. Born on 28th of May 1883 in Bhagur, a city of Maharashtra's Nashik. ठीक है, तो ये नासिक में है. भगूर उनका जहाँ पे बर्थ प्लेस है. बेसिकली ही वॉज इन कॉन्ट्रोवर्सी क्योंकि बेंगलोर में बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका इन्होंने येलाहंका फ्लाई ओवर जो है इसको वीर सावरकर फ्लाई ओवर ऐसा नाम देने का प्रस्ताव या सुझाव दिया है. तो इसकी वजह से देयर आर टू क्लैशेस बिटवीन द पीपल दैट कुछ बोल रहे क्रिटिक्स कर रहे कि नहीं एंड कुछ बोल रहे कि हाँ, तो इसलिए यहाँ पे ये दिस पर्सन वाज इन न्यूज. तो लेट्स सी. ही फॉर्म्ड मित्र मेला in 1899 at Nashik itself, a secret organization. Then in Pune, Savarkar founded अभिनव भारत सोसाइटी इन 1904. एक्चुअली मित्र मेला को ही उन्होंने ट्रांसफॉर्म करके अभिनव भारत सोसाइटी बनाया था. ही वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन स्वदेशी मूवमेंट एंड लेटर ज्वाइंड तिलक स्वराज पार्टी. मतलब ये एक्सट्रीमिस्ट थे बेसिकली. ही फाउंडेड फ्री इंडिया सोसाइटी अलॉन्ग विथ मैडम भिकाजी कामत. Then he was against foreign goods and propagated the idea of Swadeshi. In 1905, he burnt all the foreign goods in the bonfire on Dashera. तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं. He was rationalist and also disapproved orthodox Hindu beliefs. Then Veer Savarkar was president of Hindu Mahasabha from 1937 to 43. And when Congress ministry offered resignation on 22nd October 1939, Hindu Mahasabha under his leadership cooperated with Muslim League to form government in provinces like Sindh, Bengal and Northwest Frontier. तो मतलब यहाँ पे उन्होंने ये कुछ काम किया था. बट यहाँ पे याद रखने जैसा हिंदू महासभा के वो प्रेसिडेंट थे 37 से 43 तक. देन कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स है उनका. He has written a book, The History of War of India's Independence, where he has declared that 1857 Sepoy Mutiny as the first war of independence. The book was banned by Britishers, but Madam Bhikaji Kama published the book in Netherlands, Germany and France and eventually reached many Indian revolutionaries. He was arrested in 1909 for Nasik conspiracy case for plotting an armed revolt against Morley Monto reform. He founded the two-nation theory in his book Hindutva, calling Hindu-Muslim two separate nations. In 1937, the Hindu Mahasabha passed it as a resolution. और 2002 में पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट एट अंडमान निकोबार आइलैंड was renamed after Veer Savarkar International Airport. So moving to the next news, that is Schedule 5. It was in news because Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshiyari has modified ST Scheduled Tribe and other traditional forest developed Act 2006. इसको बोलते हैं Forest Rights Act 2006, allowing rightful claims of forest rights to appeal against decision of district level committee. मतलब district level committee के ऊपर अगर तुमको अगर कुछ अपील करना है तो तुम जा सकते हो. उसी के लिए उन्होंने क्रिएट किया है डिविजनल लेवल कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डिविजनल कमिश्नर. जो केसेस पहले ही ऑर्डर दे चुके हैं, जजमेंट दे चुके हैं, उनको उन्होंने 6 months का वैलिडेशन दिया है दैट यू कैन अपील विद इन 6 months. एंड जो भी ऑर्डर्स आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस नोटिफिकेशन आने वाले उनको 90 days दिए गए टू अपील अगेंस्ट द डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी. सो लेट्स सी अबाउट फिफ्थ शेड्यूल. तो फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन
and control of scheduled areas as well as scheduled tribes residing in any states other than Assam, Meghalaya, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ये आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए शेड्यूल 6 अलग से बनाया गया है। तो ये 4 स्टेट्स को छोड़ के जिस भी स्टेट में अगर शेड्यूल एरिया है उसके रेगुलेशन के लिए ये शेड्यूल है। सो बेसिकली कुछ स्पेशल प्रोविजंस देखते हैं इसके। गवर्नर ऑफ ईच स्टेट्स हैविंग शेड्यूल एरिया शैल एनुअली or whenever so required by the president make a report to the president regarding the administration of scheduled area in that state। मतलब अगर एनुअली तो देना ही देना है, बट अगर प्रेसिडेंट ने बोला तो उनको एक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर रिपोर्ट सबमिट करती है हर साल। किसको? प्रेसिडेंट को। यूनियन गवर्नमेंट शैल हैव एग्जीक्यूटिव पावर्स टू गिव डायरेक्शंस टू द स्टेट्स एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज। मतलब यूनियन गवर्नमेंट भी स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे सकती है विद रिस्पेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ scheduled areas। Para 4th of 5th schedule provides establishment of tribal advisory council, जिसमें मिनिमम 20 मैक्सिमम 20 मेंबर्स होते हैं, उसमें से 3/4 मेंबर्स आते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से। एंड उनके फंक्शंस होते हैं टू द वेलफेयर एंड एडवांसमेंट ऑफ एसटीज इन द स्टेट एज वेल एज रेफर्ड टू देम बाय द गवर्नर। गवर्नर की भी कुछ पावर है अंडर दिस शेड्यूल, दैट इज the number of members of the council, mode of their appointment and the appointment of the chairman। तो ये सारे जो प्रोसीजर है वो बेसिकली बनाते हैं। The governor by public notification direct that any particular act of parliament or legislature of the state shall or shall not apply to the scheduled area or any part of thereof सब्जेक्ट टू एग्जेम्पशन एंड मॉडिफिकेशन एज स्पेसिफाइड। मतलब अगर पार्लियामेंट कोई एक्ट पास करता है या स्टेट लेजिस्लेचर कोई एक्ट पास करता है तो उसमें क्या चेंजेस होने चाहिए एंड अप्लाई होना चाहिए शेड्यूल एरिया को, तो ये कौन बताता है? गवर्नर बताता है। सो द गवर्नर में रिपील और अमेंड एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट और एनी एग्जिस्टिंग लॉ बिफोर ऑब्टेनिंग द आफ्टर ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब जो भी एक्ट्स है दे कैन बी अप्लाइड टू द स्पेसिफिक शेड्यूल एरिया after modification after receiving presidential consent। So let's see the next one। US strips Hong Kong of special trading status। बेसिकली स्पेशल ट्रेडिंग स्टेटस मिल रहा था, तो बेसिकली ये हांगकांग है, ये चाइना है, तो चाइना के लिए अलग ट्रीटमेंट था एंड हांगकांग के लिए बेसिकली पहले अलग ट्रीटमेंट था, बट अभी इनका जो स्पेशल ट्रेडिंग स्टेटस है यहाँ से हटा दिया गया है एंड हांगकांग विल बी ट्रीटेड सेम एज चाइना। सो बेसिकली उन्होंने डिक्लेयर किया दैट it is no longer considered as Hong Kong as autonomous from China। So चाइना के मेनलैंड से ही उसको अभी ट्रीट किया जाएगा। It is estimated that 38 billion trade between Hong Kong and US could be jeopardized। मुश्किल में आ सकता है, बट लॉन्ग टर्म में अगर देखेंगे तो लोगों के मन में सेकंड थॉट आएगा टू रेज मनी एंड टू इन्वेस्ट इन हांगकांग। जैसे आज हम देख रहे हैं कि चाइना से बहुत सारे बिजनेसमैन पुल आउट कर रहे हैं अपना इन्वेस्टमेंट, सेम ये हांगकांग के साथ भी हो सकता है। तो यहाँ पे याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यूएस ने किसका स्पेशल ट्रेडिंग स्टेटस हटाया, तो वो था हांगकांग। देन इंटरनेशनल डे of United Nations Peacekeepers, it is observed on 29th May। The theme was for this year Women in Peacekeeping, a key to peace। The 29th May has been decided because that was the first time on 29th May 1948 जब हमने पहला मिशन मिडिल ईस्ट में सेंड किया था। तो बेसिकली पीस कीपर्स जो है, जो मतलब राइट्स होते हैं या इस्लामिक स्टेट्स होते हैं जहाँ पे वी कैन सी मिलिटेंट्स होते हैं, टेररिज्म होती है, टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, तो टू कंट्रोल दैट, टू एनहांस दी फंडामेंटल राइट, ह्यूमैनिटिक राइट, तो उनको लॉन्ग लास्टिंग पीस करने के लिए वहां पे पीस कीपर्स भेजे जाते हैं। सो व्हाट इज दिस पीस कीपिंग? इट इज अ जॉइंट एफर्ट बिटवीन डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल सपोर्ट। एवरी मिशन ऑफ द पीस कीपिंग इज सपोर्टेड या ऑथराइज्ड बाय सिक्योरिटी काउंसिल। फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है वो यूनाइटेड नेशंस के सारे मेंबर्स देते हैं। तो इनके कंपोजिशन बेसिकली इनको बोलते हैं ब्लू बेरेट्स और ब्लू हेलमेट्स, ठीक है, बिकॉज देखना आप सामने दिख रहा है तुमको ऐसे हेलमेट्स होते हैं उनको, इसलिए इनको बोलते हैं ब्लू हेलमेट्स बोलते हैं इन लोगों को, ऑफ द ब्लू लाइट ब्लू हेलमेट्स की वजह से। देन इट इंक्लूड सोल्जर, पुलिस ऑफिसर, सिविलियन पर्सन। देन सिविलियन स्टाफ जो देता है इट इज गिवन बाय यूनाइटेड सेक्रेटरीट। यूएस पीस कीपिंग इज गाइडेड बाय 3 बेसिक प्रिंसिपल, that is consent of the parties, impartiality
and non-use of force except in defense and defense of the mandate. तो ये 3 बेसिक प्रिंसिपल्स याद रखना, एग्जाम में पूछ सकते हैं. So moving to the next, न्यू डेवलपमेंट बैंक. दिस वाज इन न्यूज बिकॉज एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें निर्मला सीतारमन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, so that's why it was in news. So जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इट इज अ मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक ऑफ ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. इट वाज एग्रीड इन 5th ब्रिक समिट हेल्ड इन डरबन 2013. बट ये जो बैंक है उसको एस्टेब्लिश किया गया 2014 में एट फोर्टलेजा समिट दैट इज इन ब्राजील. सो बेसिकली वर्ल्ड बैंक में जो है अपने कैपिटल शेयर के हिसाब से तुमको वोटिंग राइट्स मिलते हैं, बट न्यू डेवलपमेंट बैंक में जो है एवरी कंट्री हैज वन वोट irrespective of its what we can say capital share. So basically Montenegro was in news because this is the first country in Europe to declare itself coronavirus free, so that is a good news actually. It is a country in South and Southeast Europe on the coast of Balkans. We can see that it has been bordered by Bosnia in the northwest, Siberia to the northeast, Kosovo in the east, Albania in the southeast, then Adriatic Sea in the southwest and Croatia in the west. तो ये क्वेश्चन तुमको यहाँ पे पूछ सकते हैं कि मॉन्टेनेग्रो को कितने कंट्रीज बॉर्डर करते हैं, तो यू शुड नो दैट बोस्निया, सर्बिया, कोसोवो, अल्बेनिया, तो ये कंट्रीज है जो इसको क्या करते हैं, बॉर्डर करते हैं. एंड वर्ल्ड डुगोंग डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 28th May and the theme was save dugong and save livelihood. It is also known as sea cow. It is the world's only vegetarian marine animal found in warm coastal waters from East Africa to Australia, including Red Sea, Indian Ocean and Pacific Ocean. So basically IUCN के अंडर it is under vulnerable. तो हंटिंग पोचिंग बहुत होता है, इलीगल स्मगलिंग बहुत होता है इस एनिमल का, सो दैट्स व्हाई इट इज टू जनरेट अवेयरनेस. तो ये डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं. होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट बिलो. थैंक यू.